Hello everyone, welcome to Blessing Institute. Yesterday we saw that collection is set or not. Today we will focus on some sets and then the topic which is very important for the 12th also, in which way we can write the set in property method, means set builder form, or listing method, or roster form, or you can say tabular method, tabular form also you can say, right? So first of all we see this set of natural numbers, set of natural numbers containing the numbers which are starting from 1 2 3 4 dash dash dash. All the बच्चास of गली knows that, गली गली के बच्चे जानते हैं कि in the set of natural numbers the numbers are 1 2 3 4 5 dash 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 till infinitely many elements. Now set of whole numbers, set of whole numbers. सो ये भी आपको पता है कि भाई होल नंबर्स में अगर n में जीरो जोड़ दे तो वो बन जाएगा सेट ऑफ होल नंबर. सो द एलिमेंट्स फॉर द सेट ऑफ होल नंबर्स इज 0 1 2 3 4 dash dash dash. It is also easy. Now set of integers, set of integers containing all positive integers means natural number, negative integers and zero. You all know this dash 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 containing -3, -2, -1, 0, 1 2 3 dash dash dash. Right? Now it is little गड़बड़िया set. Q means रेशनल नंबर सेट. ये कई लोगों की विकेट ले ऐसा सेट है. पूरा सेट का चैप्टर आप शायद लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आए, वो चैप्टर का नाम था रेशनल नंबर्स. फिर भी अगर मैं आज आपको पूछूं कि एक्सप्लेन मी द रेशनल नंबर, तो समझ लो कि मोर देन 90% स्टूडेंट्स की हवा निकल जाती है. ऐसा विकेट लेने वाला ये रेशनल नंबर सेट है. तो मैं आपको यूं इजी सिखा दूंगा कि भाई कैसे आपको पता चले कि नंबर इज रेशनल और इरेशनल. हाउ कैन वी से, यूं सिखा दूंगा मैं भी. देखो इसमें कौन से नंबर्स आएंगे. सी एग्जैक्टली वी कांट राइट, बट स्टिल हम थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हैं. 0 then 1 then dash dash dash. Now tell me how many numbers between 0 and 1. So there are also infinitely many numbers between 0 and 1. Now what about the numbers which are between 0 and 0.1. तो उसके बीच में 0.001 0.0001 0. There are also infinitely many numbers between 0 and 0.1. मतलब आप कोई भी दो नंबर ले लो, every time you will get infinitely many numbers between those numbers. तो किस तरह से इसे लिखे. सो रिमेंबर इट कि इन रोस्टर फॉर्म और इन लिस्टिंग मेथड वी कांट राइट इजीली द रेशनल नंबर सेट. तो उसे समझे कैसे. तो आपने डेफिनेशन में ये पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, कि if a number is represents as p by q, where p belongs to z and q belongs to n, is called rational number. If any number we can represent in the form of p by q, where p belongs to z and q belongs to n, is called rational numbers. So how can we say? Now see, I have √2. For our study, कई बार सम के अंदर थोड़ा इजी बनाने के लिए हम √2 की वैल्यू 1.4 लेते हैं. इन सम सम्स वी टेक 1.41. तो भाई हमारी जरूरियात के हिसाब से,
क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है, ये तो बाजू में कंडीशन दे रखी है कि टेकिंग √2 इज इक्वल टू 1.4 या √2 इज 1.41, आप वो लोगे और आपका आंसर मिलेगा। मतलब क्या हुआ इसका कि भाई 1.4 यानी 14/10 वी कैन राइट, सो इट इज लाइक P upon Q, then it means what? It is rational. So is √2 rational? No, I am saying √2 is not rational number. तो फिर ये दोनों इक्वल नहीं हुए। I am saying they are not equal, but they are approximate numbers. They are not exact. So we will write approximately 1.4. क्यों ऐसा लिखते हैं भाई? हमारी जरूरत के हिसाब से, अगर हमारी नीड ऐसी है, क्वेश्चन इस तरह से बना है कि जिसमें 1.4 या 14 से कहीं पे कट हो रहा है, 14 किसी का मल्टीपल है तो इजीली कट हो जाए, इसके लिए हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चूज करते कि ये लेना है या ये लेना। अच्छा, मुझे ये दिया है, then I will write 1.141 upon 100. So it is also rational number, but remember it is not exact √2, it is approximately √2। मतलब क्या हुआ कि आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि भाई अब till 1 decimal find the root square root of 2 till 1 decimal, 2 decimals, 3 decimals। तो जैसा क्वेश्चन आप ये लाओगे, ये लाओगे, ये लाओगे, ये लाओगे, मतलब बात ये हो गई कि √2 की जो वैल्यू है दैट इज नॉट फिक्स, दैट इज नॉट परफेक्ट। 1.4 is not perfect, so we cannot write √2 equal to 1.4, we will write √2 approximately 1.4। तो ये बात मैंने √2 की doesn't mean I am talking about only square root। अगर मेरे पास क्यूब रूट में 4 है ना, if I have or we have cube root of 4, it is also not giving the perfect number or fixed number, so it is also irrational number। अरे भाई क्यूब रूट की बात क्यों करूं, आप फोर्थ रूट में भी चले जाओ। क्यूब रूट ऑफ 8 is 2, but fourth root of 8 is we don't know and it is not fixed, it is not perfect, so it is also irrational number। तो भाई irrational number को आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे करेंगे? If a number is in any root and if its value is not perfect, then the number is called irrational number। If a number is in any root and if its root is not perfect, then the number is called irrational number। Then the number is called irrational number, otherwise it will be, अगर कोई नंबर आ गया then ask are you in root, if it says no, you are rational number। are you in root, no, you are rational number। अगर किसी ने बोल दिया yes sir I am in root, अच्छा you are in root, okay, so which root is that? square root, which is the number 4, square root of 4 is 2, that is perfect, so you are also rational। सो जरूरी नहीं है कि रूट है तो वो इरेशनल ही बनेगा। रूट होने के बावजूद इफ द रूट इज गिविंग द परफेक्ट नंबर लाइक क्यूब रूट ऑफ 8 is 2, therefore it is rational number। सो नंबर अगर रूट में है और अगर उसका वो रूट परफेक्ट आंसर नहीं दे रहा है, अप्रोक्सीमेट आंसर दे रहा है, देन वी विल से इट इज इरेशनल नंबर। सो क्यू के अंदर कौन से नंबर्स नहीं आएंगे? इरेशनल। तो आर में कौन से नंबर आएंगे? ऑल द रेशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स विल बी इन सेट आर। सो ये बात हो गई सारे सेट्स की। एन जेड, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर सबको याद होना चाहिए। अभी हम फोकस करेंगे ऑन दी सेट्स, हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट। भाई 12th में भी कई बच्चे गड़बड़ी करते हैं कि भी दिया हुआ हो
प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म, और उसको वो प्रॉपर वे में लिस्टिंग मेथड यानी रोस्टर फॉर्म में भी नहीं लिख पाते, मतलब आंसर तो राइट आएगा ही नहीं। तो भी कैसे होगा ये आपको समझना है। तो अगर मेरे पास कोई सेट है, सेट ए x such that x belongs to n, x less than 6, x greater than or equal to 2, it is in this way। तो भाई कौन सा एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे, तो आपको बराबर याद रखना है कि सच दैट से पहले जो लिखा है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द सेट्स, और पीछे जो दे रखा है ऑल आर कॉल्ड कंडीशंस। पीछे जो दे रखा है उसे हम बोलेंगे कंडीशंस। एलिमेंट इज दिस, सच दैट से पहले जो है, बिफोर सच दैट इज कॉल्ड एलिमेंट, एंड आफ्टर सच दैट ऑल विल बी कंडीशंस। तो इसके एलिमेंट्स कौन से आएंगे, मतलब x की वैल्यू मुझे वो लेनी है जो सारे कंडीशन सेटिस्फाई करती हो। जैसे x बिलोंग्स टू n, सो n है मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 बिकॉज 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। यहाँ पे आए 1 इज लेस देन 6, यस इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। 1 is greater than or equal to 2, no, so 1 will not come। so in mathematics एक चीज आप ये भी याद रख लो कि if single element say no means all say no, if single element say no means all say no, remember it। if all say yes then yes, but if one say no means all say no। so one को इसने मना कर दिया तो ये दोनों ने भी बोला कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। चलो 1 रिजेक्ट हो गया। नाउ फॉर 2 इज स्मॉलर देन 6, यहाँ पे 2 आ रहा है, सो कैन टेक 2। फॉर 3 दिस ऑल द कंडीशंस आर देयर 3। चलो 4 भी आ रहा है, 5 भी उसे सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ व्हाट अबाउट 6, तो x 6 यहाँ पे है, इसका भी ये सेटिस्फेक्शन हो रहा है, पर x 6 इज नॉट लेस देन 6, तो 6 नहीं आएगा, मतलब हमारा सेट यहाँ पर खत्म हो गया। कितना इजी है, क्लियर, गेटिंग। चलो नेक्स्ट, सेट बी, सेट ऑफ 3x minus 4 such that x belongs to n, 1 less than or equal to x less than or equal to 4। only two conditions we have, दोनों को सेटिस्फाई करे ऐसे मुझे एलिमेंट्स लेने हैं। सच दैट से जो पहले है दैट विल बी द एलिमेंट, और बाद वाले बनेंगे कंडीशंस। चलो वी हैव सेट n, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 यहाँ भी आ रहा है, सो टेकिंग x इक्वल टू 1, व्हेन वी टेक x इक्वल टू 1, 3 1 जा 3, 3 minus 4 is -1, so -1 will be the element of set B। अरे सर -1 n में कहाँ पे आता है, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि हमेशा यही गड़बड़ी होती है कि सर -1 ना तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना तो ये कंडीशन को, फिर भी आपने लिया। बिल्कुल मैंने लिया, बिकॉज मुझे जो बोला हुआ है वो ये है कि ये एलिमेंट इसे सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, x शुड बी देयर। चलो मैंने x की वैल्यू 1 ली, तो मैंने x यहाँ पे डालने के बाद इट इज गिविंग -1, इट इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो मुझे ये भी ध्यान रखना है, सिर्फ ये नहीं। सो इस तरह से हम एलिमेंट्स डिफाइन करेंगे। चलो मैंने x इक्वल टू 2 लिया, 3 2 जा 6, 6 minus 4 is 2। देन फॉर x इक्वल टू 3, 3 3 जा 9, 9 minus 4 is 5। फॉर x इक्वल टू 4, 4 3 जा 12 minus 4 is 8। कैन नॉट टेक 5 बिकॉज ये कंडीशन यहाँ पे सेट नहीं होगी। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ आवर सेट। तो है तो बहुत इजी, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। सो आपको मैं 3 क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट लिखनी है, देखते हैं हु इज फर्स्ट, राइट। सो 3 क्वेश्चंस। 1, सेट ऑफ 4x plus 3 such that x belongs to z
-1 less than or equal to x less than 4. Second one, set of 4x such that x belongs to n, x is less than or equal to 5. Third one, set of 5x minus or 2x minus 5 such that x belongs to n and 2 less than or equal to x less than 6. So these are in common. So remember ये आपको करना है. आंसर लाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालें. आई विल चेक योर आंसर. और नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको ये अच्छा लग रहा है देन लाइक वीडियो और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल गिव यू सम मोर ट्रिक्स. ओके, सी यू.